Hello everyone, I'm Dr. Surangna and I welcome you to yet another episode of Women Health series by Lifestyle Speaks. The thyroid gland is one of the most important gland of our body which produces thyroid hormones that controls different activities in our body like our body's metabolism, how fast we burn calories and how fast our heart beats. However, diseases of the thyroid gland, which is also referred to as thyroid disease, causes our thyroid gland to produce too much or too little of the thyroid hormones, which basically affects our body weight, our energy levels and the proper functioning of our body. तो जो हमारा thyroid gland है वो हमारे body का one of the important glands है और वो thyroid hormones produce करते हैं। लेकिन थायराइड डिजीज में थायराइड ग्लैंड्स में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से या तो वो ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो कम थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा वेट इफेक्ट होता है, हमारी एनर्जी लेवल्स इफेक्ट होती हैं और हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस भी इफेक्ट हो जाती हैं। सो व्हाई टुडेज वीडियो इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज women are more likely than men to develop thyroid disease, especially after their pregnancy and menopause. Men also have the thyroid glands, but they're less likely to develop problems with it. Whereas it has been found that 1 in 8 women develop thyroid problems during their lifetime. According to the American Thyroid Association, about 20 to 20% of women in their 30s are also known to develop thyroid problems. And that is why this video is very important, and that is why it is very important that we women are aware about this condition, its signs and symptoms, remedies, लाइफस्टाइल टिप्स एंड हेल्दी फूड्स फॉर मैनेजिंग थायराइड। तो लेडीज में थायराइड डिजीज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है मेन के कंपैरिजन में। तो जो मेन है उनमें भी थायराइड ग्लैंड होता है, लेकिन उन्हें ये डिजीज होने के चांसेस लेडीज से कम होते हैं। और इसलिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लेडीज़ को इस कंडीशन के बारे में पता चले कि इसमें क्या होता है, इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं, क्यों होता है, इसके क्या रेमेडीज़ हैं, क्या लाइफस्टाइल टिप्स और फूड्स हम अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि हम थायराइड को मैनेज कर सकें। और इसलिए आज के वीडियो में मैं पूरा थायराइड डिजीज़ के बारे में बात करूंगी, उसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी और वो क्यों होता है इसके बारे में बात करूंगी। और जो इसके रेमेडीज़ हैं, लाइफस्टाइल टिप्स हैं और हेल्दी फूड्स हैं उससे रिलेटेड, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी वुमेन हेल्थ सीरीज़ की। So in today's video, I'll be talking in great detail about the thyroid disease and its signs and symptoms which we need to be aware of, and about its remedies and lifestyle tips and healthy food options for managing thyroid that I will be discussing in my next video of the Women Health series. So without delaying any further, let's get started. तो चलो शुरू करते हैं। The thyroid gland is a small organ which is located in front of our neck, and it is an endocrine gland. Its main function is to produce thyroid hormones which controls metabolism and different vital functions in our body. तो जो थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा ऑर्गन है जो हमारे नेक के सामने पाया जाता है और इसका जो मेन फंक्शन है थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करने का है, जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म और हमारे बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। The thyroid hormones which helps to control metabolism and how our cells use energy in the body are your T4, also known as thyroxine, which is known to contain 4 iodine atoms. And the other hormone is your T3, also known as triiodothyronine, which is known to contain 3 iodine atoms. And when the thyroid gland is functioning properly in our body, these hormones are produced in right and balanced amounts in our body. तो हमारे थायराइड ग्लैंड्स 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक है T4 जिसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं और दूसरा है T3 जिसको हम ट्राइडोथायरोनिन भी कहते हैं। और जब हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से फंक्शन करता है तो ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में बिल्कुल सही मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। सो द 2 हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, दे आर सुपरवाइज्ड बाय अ पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच बेसिकली कंट्रोल्स the levels of thyroid hormones in our bloodstream. And when it senses too high or too low levels of thyroid hormones in our body, it helps to adjust these levels by synthesizing its own hormone which is known as the thyroid stimulating hormone. तो जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे ब्लड में थायराइड हार्मोन्स के लेवल को कंट्रोल करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि वो लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है तो वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं अपना खुद का हार्मोन सिंथेसाइज करके, जिसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। The levels of thyroid stimulating hormone and the T3 and T4 hormones in our body can be quantified by a blood test. And the normal ranges of these hormones in our body are as follows. तो ये है
नॉर्मल रेंजेस हमारे TSH हार्मोन्स के, T3 हार्मोन्स के और T4 हार्मोन्स के जो हमारे बॉडी में होने चाहिए. So the two main types of thyroid disease which affects more women than men are your hypothyroidism and hyperthyroidism, with hypothyroidism being more common. And they may occur in women because of genetic factors or hormonal imbalances or wrong lifestyle. When the thyroid gland makes too little of the thyroid hormones or does not produce enough thyroid hormones, it results in a condition which is known as hypothyroidism, where because of low levels of thyroid hormones in our body's metabolism starts to slow down. And this leads to decreased energy levels, weight gain, and it also makes us unable to tolerate cold temperatures, and our body's natural functions also starts to slow down. तो जो सबसे पहला थायराइड कंडीशन जो विमेन में ज़्यादा है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म. इसमें क्या होता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड्स में कुछ डिसफंक्शन के कारण वो बहुत कम या कम मात्रा में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और इसके कारण हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो धीरे हो जाता है, जिसके वजह से वेट गेन होता है, हमें बहुत थकान महसूस होती है, और जो हमारे बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो भी धीरे हो जाते हैं, और हमारे बॉडी में कम थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा ठंड भी सहन नहीं कर पाते हैं. So the most common cause of hypothyroidism is Hashimoto's thyroiditis. This is an autoimmune condition where a body mistakes normal healthy cells to invading cells. And because of this confusion, our immune system starts to attack healthy tissues. And in the case of hypothyroidism, they start attacking the thyroid gland. And this leads to inflammation in our thyroid gland, and it also contributes to reduced thyroid function. तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो हैशिमोटोस थायरॉइडाइटिस की वजह से होता है, जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पर हमारे बॉडी के जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं उसको हमारी बॉडी हमलावर कोशिकाओं से कंफ्यूज कर लेती है. तो हमारी बॉडी को ये लगता है कि ये जो सेल्स हैं हमारी बॉडी पे हमला करेंगे. इसके वजह से जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो इन सेल्स को अटैक करने लगता है, मतलब वो हेल्दी टिश्यूज को अटैक करने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमलावर कोशिकाएं हैं. और हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में वो हमारे थायराइड ग्लैंड्स को अटैक करने लगता है, जिसके वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और हमारे थायराइड ग्लैंड का फंक्शंस भी रिड्यूस हो जाती है. इन हाइपोथायरॉयडिज्म, बिकॉज द थायराइड सेल्स are unable to convert iodine to thyroid hormones, the levels of the thyroid hormone, which is your T3 and T4, decreases. However, the level of thyroid stimulating hormone increases because since there is low levels of thyroid hormones in our body, the pituitary gland makes an effort to induce the thyroid gland to produce more thyroid hormones. And this it does by producing more of thyroid stimulating hormones, due to which the level of TSH or thyroid stimulating hormones increases during hypothyroidism, and the levels of T4 and T3 hormones decreases. हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारे थायराइड ग्लैंड बहुत थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते. इसके वजह से T3 और T4 जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनका लेवल कम हो जाता है. पर जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ये कोशिश करता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो और हार्मोन प्रोड्यूस करे, क्योंकि हमारे बॉडी में कम मात्रा में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में. तो इस चक्कर में वो ज़्यादा TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से उसका लेवल बढ़ जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म के साइंस एंड सिम्टम्स या द मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म आर फीलिंग कोल्ड व्हेन अदर्स डू नॉट, ठंड ज़्यादा लगना जब ठंड ना भी हो तो, वेट गेन, वेट का बढ़ना, फैटीग एंड फीलिंग वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, ड्राई थिनिंग हेयर एंड ब्रिटल नेल्स, सूखे से बाल हो जाना और नाजुक नाखून होना, मसल स्टिफनेस, एक्स एंड वीकनेस, मसल्स में दर्द होना और थकान होना, स्टिफनेस एंड पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में दर्द होना, पफी फेस, फूला हुआ चेहरा होना, पेल ड्राई स्किन, सूखी सी और बेजान सी स्किन हो जाना, स्लोअर हार्ट रेट, दिल की धड़कनें कम हो जाना, होर्स वॉइस, कर्कश आवाज होना, इम्पेयर्ड मेमोरी, याददाश्त थोड़ी सी कमजोर होना, एलिवेटेड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, फर्टिलिटी डिफिकल्टीज, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, डिप्रेशन, इरेगुलर और हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल, अनियमित और भारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, पेन, नमनेस एंड टिंकलिंग सेंसेशन इन द हैंड्स एंड फिंगर्स, हाथों और उंगलियों में दर्द रहना, नम रहना या फिर उनमें एक अजीब सी सेंसेशन होना. Hyperthyroidism is a condition
where the thyroid gland produces too much of the thyroid hormones than that needed and required by the body. And this speeds up many different functions in our body, including our body's heart rate and body's metabolism, which leads to unintentional weight loss. तो जो दूसरी कंडीशन है थायराइड की, जो लेडीज में ज़्यादा पाई जाती है मेन के कंपेरिजन में, वो है हाइपरथायराइडिज्म। इस कंडीशन में ये होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और इतना प्रोड्यूस करता है जितनी हमारी बॉडी को बिल्कुल नीड भी नहीं होती है। इसके वजह से हमारे बॉडी के बहुत सारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट रेट बहुत जल्दी बढ़ता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी बढ़ता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। The most common cause of hyperthyroidism is Graves' disease, which is again an autoimmune disorder. So in this condition, what happens is that our immune system produces antibodies, which are known as thyroid stimulating antibodies or thyroid stimulating IgGs, which attaches to healthy thyroid cells and causes it to produce more of thyroid hormones. And this Graves' disease is more common in women than in men. तो जो हाइपरथायराइडिज्म का मेन कॉज है वो है ग्रेव्स डिजीज, जो फिर से एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, जिसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, जो हमारे हेल्दी थायराइड सेल्स पे जाकर अटैच होती है और उनको प्रोत्साहित करती हैं कि वो ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करें। So in hypothyroidism, the levels of your thyroid hormones, which is the T3 and T4 hormones, increases, whereas the levels of the TSH or thyroid stimulating hormones decreases, because here the pituitary gland makes an effort to reduce the excess synthesis of thyroid hormones in our body. तो हाइपोथायराइडिज्म में जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं T3 और T4, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, पर जो TSH और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ये कोशिश करती हैं कि कैसे वो जो हमारे थायराइड हार्मोन्स का ज़्यादा सिंथेसिस हो रहा है उसको वो रोक सके। Hyperthyroidism के signs and symptoms, या the most common signs and symptoms of hyperthyroidism are unintentional weight loss despite same or increased food intake and appetite. बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस होना जबकि आप उतना ही खा रहे हैं या आपकी एपेटाइट उससे ज़्यादा भी है तब। रैपिड हार्ट बीट और इरेगुलर हार्ट बीट, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या इरेगुलर हो जाना। पैल्पिटेशंस, इंक्रीज एपेटाइट, बहुत ज़्यादा भूख लगना। ट्रम्बलिंग ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स, हाथों का या हाथों की उंगलियों का हिलना। स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना। चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल पैटर्न्स विद फ्यूअर एंड लाइटर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ बदलाव आना जिसकी वजह से कम और लाइट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होना। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, गर्मी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना। फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स, बहुत बार वॉशरूम जाना। इनलार्ज थायराइड ग्लैंड ऑल्सो नोन एज गोइटर, तो थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना। डिफिकल्टी स्लीपिंग एंड डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स, रात में सोना थोड़ा मुश्किल लगना और बिल्कुल अच्छे से नींद नहीं आना। फैटीग एंड मसल वीकनेस, बहुत थकान होना और मसल्स में वीकनेस होना। ब्रिटल हेयर या सूखे बाल हो जाना। नर्वसनेस एंड रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा बेचैन होना या बहुत ज़्यादा बेचैन रहना। डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, किसी भी काम में मन लगाना मुश्किल लगना। रेडनेस एंड इरिटेशन इन आईज, आंखों में लाल होना या कुछ इन्फेक्शन होना या इरिटेशन होना। So in today's video, I have discussed in great detail about the different thyroid diseases which affect more women than men and why it happens and its signs and symptoms. But the problem is that the signs and symptoms of thyroid diseases are very similar to other health problems, due to which it becomes difficult to say whether we have the thyroid disease or not, and even if we have the thyroid disease, we may mistake it to be something else, due to which our thyroid problem may go undiagnosed or untreated for a long time period, which is not good. That is why it is very important for us women to go for yearly blood tests, which basically will help to quantify the levels of T3, T4 and TSH hormones in our blood, and that will give us a clear idea of how our thyroid glands are functioning and whether we have the thyroid disease or not. तो जो thyroid disease है उसके जितने भी signs and symptoms हैं वो काफ़ी similar हैं और health problems के, जिसके वजह से अगर हमें thyroid disease होगा भी तो हमें लगेगा कि शायद ये कुछ और है, और इसके वजह से हमारी condition बहुत टाइम से हमें पता भी नहीं चलेगी कि हमें thyroid disease है, और ये सही नहीं है।
इसीलिए हम लेडीज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर साल ब्लड टेस्ट कराएं, जिससे हमें अपने थायराइड हार्मोन्स का लेवल पता चलेगा और हमें ये भी पता चलेगा कि हमारा थायराइड ग्लैंड कैसे फंक्शन कर रहा है और हमें थायराइड डिजीज है या नहीं. Whether a thyroid gland becomes underactive or overactive, thyroid problems in our body can make our body feel out of sync. So it is very important that we are aware about its condition, its signs and symptoms, and we go for yearly checkups so that we can better manage a thyroid disease. So that's it for today. In my next video of the Women Health series, I'll be discussing in more detail about the thyroid problems, where I'll be discussing about few healthy lifestyle tips, few healthy foods which can help to manage a thyroid disease and balance our thyroid levels. So stay tuned. Stay healthy, stay happy, and thank you so much for being a part of this healthy journey. If you're still not subscribed to my channel, hit the subscribe button and don't forget to press the bell icon so that you can get all latest updates from Lifestyle Speaks. Love your life and make it charismatic. See you again next time. Stay safe, stay connected, keep smiling, and keep watching Lifestyle Speaks.